Good morning, Dr. Narang, faculty members, and dear students. It's a great and memorable occasion for me to be present with all of you at the induction program. The program started, I believe, on 1st of September, and unfortunately, because of some family commitments, I was not able to make it on that day. But I'm very happy to see that out of a total strength of 300 students, because now the MBA program has three separate verticals. One is the general management program, business analytics programs, and a new program which has recently been launched on banking, in which more than 260 students have already taken admissions. And I think in the next few days, we'll be able to complete the 300 students that are required for the current year. I'm also happy to see that large number of girl students, almost 50% of the students who are here are girl students. And this shows the power of the women. And if our economy has to grow, if we have to develop, then the women have to come up in every field and every activity, whether it is in management, whether it is in technology, whether it is in space, defense, every area and every field, the woman power has to come in. I know each one of you have come with certain aspirations, certain dreams, and everybody has certain purpose in life. And this institute, along with all the faculty members and their director, will be able to assist you to be able to fulfill your dream. It is a collaborative effort. It is an effort where both of you have to work together because lot of dynamic changes are happening in the education world. And unless you put in your best, you have a clear goal plan, a clear path, and are fully committed to that path, it will be very difficult for anybody to be able to do justice to it. यहाँ पे आप लोग नए नए स्किल्स सीखेंगे, नए टैलेंट्स सीखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे जो इंडस्ट्री से हैं, एक्सपर्ट से मिलेंगे, इंटरेक्शंस आपके होंगे और हर एक अपॉर्चुनिटी को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ेगा. अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे इंस्टीट्यूशंस के लिए. एंड फैक्ट ये है कि इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, and we have been able to come up as one of the finest institutions because we have been ensuring that we work very closely with the industry. तो जितने भी opportunities आपको मिलें, boys and girls, I would like that you should try to avail of it, and ensure that you learn something from it. Because जब तक वो learning नहीं होगी, थ्योरी में तो बहुत चीज़ पढ़ाई दी जाएंगी आप लोगों को और आप सीखेंगे भी, बट वो चीज़ टेम्परेरी रह जाती है. बट जो एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे, बोथ फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम द रिसर्च दैट यू डू, फ्रॉम द पियर्स अमंग अस, क्योंकि आजकल हर चीज़ इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी होती जा रही है. अलग अलग एरियाज़ हैं जिसमें आप लोग को काम करना है और लोगों से आप लोग मिलेंगे जिनसे आप इंटरेक्ट करेंगे. इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, चाहे वो गूगल हो, नेटवर्क हो, नेटफ्लिक्स है, जितनी चीज़ें हैं जिनसे आप लोग वर्क करेंगे. तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन इंडिया में हैं और वर्ल्ड में है, जिससे कि सीखने के माध्यम बहुत सारे बढ़ गए. जब हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते थे तो हम लोग डिपेंडेंट होते थे ओनली ऑन द टीचर. बट नाउ द होल विस्टा एंड अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एवेन्यूज़ आर ओपन टू ईच वन ऑफ यू. इट इज़ फॉर यू टू इंश्योर दैट हाउ बेस्ट यू कैन अवेल ऑफ दीज थिंग्स. लास्ट फ्यू डेज़ में आप लोगों ने बहुत लोगों से मिले होंगे, चाहे वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स रहे होंगे, चाहे एलुमनाइज रहे होंगे, या और लोगों ने आपसे बातचीत की होगी अबाउट द फ्यूचर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रोल दैट यू हैव टू अडॉप्ट while you are in the school and subsequently when you go for a job. Some of you will be looking for jobs which is a family job, जो आपके फैमिलीज़ में काम कर रहे हैं. कुछ लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग मल्टीनेशनल्स में काम करें या एग्जीक्यूटिव्स बने, और कुछ लोग आप लोग ऐसे भी होंगे जो उस थिंकिंग के होंगे कि मुझे नया स्टार्टअप शुरू करना है तो हम जॉब प्रोवाइडर्स बन सकें.
तो हर आदमी का एक विज़न है और हम चाहेंगे कि जितनी चीज़ें सिखाए जाएं इस इंस्टीट्यूशन में, उन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिखाया जाए कि आप लोग को वो स्किल सेट्स मिलें, वो टैलेंट्स मिलें, वो एटीट्यूड और वैल्यूज़ मिलें जो कि रिक्वायर्ड हो हर टाइप ऑफ जॉब्स के लिए। बट आप लोग को बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा अपने एरियाज़ में जिस काम में भी आप लोग लगना चाहते हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और पिछले लगभग 15 से 20 साल में जितने रैपिड चेंजेस हुए हैं वो ग्लोबली टेक्नोलॉजिकल फील्ड में नहीं हुए, चाहे वो रोबोटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वर्चुअल रियलिटी हो, चाहे वो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी हो, ड्राइवरलेस कार्स की टेक्नोलॉजी हो। नई नई चीज़ें रोज़ आती जा रही हैं, नए ऐप्स आते जा रहे हैं, नए न्यू थिंकिंग और अप्रोचेस आते जा रहे हैं, नए सॉल्यूशंस आते जा रहे हैं। तो उससे आप लोग का अब्रेस्ट होना पड़ेगा। यद्यपि आप लोग में वो टेक्निकल स्किल्स नहीं है, बट टू सम एक्सटेंट डिजिटल जो नॉलेज है वो आप लोग को अक्वायर करना पड़ेगा और उसके लिए फोकस करना पड़ेगा। आई पर्सनली फील कि डिजिटल इंटरवेंशंस और डिजिटल नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जा रही हैं इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क टुडे, एंड इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो दैट इज़ वन एरिया वेयर टेक्नोलॉजी विल बी अ मेजर game changer in terms of where you will be able to go and how you will be able to succeed or thrive in this challenging world. इसके अलावा हम लोग ने देखा है कि काफ़ी आजकल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बारे में आप लोग ने सुना है, देखा है किस रकम से सप्लाई चेंज वैल्यू चेंज होते जा रहे हैं, किस रकम से कोविड ने लोगों को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए। हम लोग सब पॉज करके सोच रहे हैं कि रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं अपने ऊपर कि क्या हम जो अभी तक कर रहे थे सही कर रहे थे, क्या हम लोग को और कोई तरीका है, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग है जिसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोविड हैज़ ऑल्सो ब्रिंग लिटिल बिट ऑफ tolerance and stability in our lives, and it has been a great opportunity for us to learn from different aspects, क्योंकि एक दौर पे हम लोग तेज़ी से दौड़ रहे थे। उसने ये हमको सिखाया है कि यदि हम नेचर के प्रति, क्लाइमेट चेंज के प्रति ध्यान नहीं रखेंगे तो हम लोग को एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। जितना मैंने सुना और पढ़ा है कि आज के दिन 7 बिलियन लोग वर्ल्ड में रहते हैं और इवन मोर, एंड इट इज़ ग्रोइंग ऑन अ डेली बेसिस। बट यदि अमेरिकन लाइफस्टाइल्स के हिसाब से चले और जो कंज्यूमरिज्म अमेरिका में है उसके हिसाब से यदि कंजम्पशन हो तो दिस वर्ल्ड कैन सपोर्ट नॉट मोर देन 2 बिलियन पीपल। और अंडर डेवलप कंट्री के हिसाब से चले जो कि बहुत ही बॉटम ऑफ द पिरामिड में हो, दिस वर्ल्ड कैन सपोर्ट मोर देन 15 बिलियन पीपल। बट हम वो नहीं चाहेंगे कि हमारे जो लोग हों वो उस टाइप की क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करें। तो टेक्निकली 4 से 4.5 बिलियन लोगों को ही ये वर्ल्ड सपोर्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या हम लोग कैसे अपने कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कंजम्पशन को, और किस रकम से हम नेचर के संग हार्मनी में रह सकते हैं, इन सब चीज़ों पे और मुद्दों पे हम लोग को विचार करना पड़ेगा। और आपके जितने भी टीचर्स और प्रोफेसर्स यहाँ पे हैं इन चीज़ों में आपसे नेक्स्ट 1.5-2 साल में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस रकम से हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जिससे कि हम लोग एक सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ग्रोथ का कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन बहुत सारा हम देख रहे हैं कि कमोडिटीज़ में प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गए हैं, ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ economic issues for people. Now, how do we overcome these challenges is something that again will has to be discussed. New strategies have to be adopted. New ways of thinking have to be thought about. सबसे अश्योरिंग बात तो ये है कि जो आपके बारे में और आप लोग को जो मैं बताना चाहूँगा कि आज आप जब मैनेजमेंट एजुकेशन में आए हैं तो आज इंडिया की जो स्थिति है ग्लोबल कंडीशंस में वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और अभी मैकेंजी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है
उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट द डिकेड ऑफ इंडिया बट इट इज़ द सेंचुरी फॉर इंडिया। और वो इसलिए कह रहे हैं इस बात को क्योंकि उनको लग रहा है कि चाइना प्लस वन पॉलिसी के हिसाब से इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल सप्लाई चेन, और यहाँ पे लोगों को फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी जो कि यहाँ से सामान ले जा सकें, ग्लोबली फीड कर सकें। उनको ये भी दिख रहा है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ इंडिया में हुई है वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, जहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है कि हर रकम के एक एक गांव को कैसे जोड़ सकते हैं, एक एक कस्बे को कैसे जोड़ सकते हैं, एक एक आदमी को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, एंड मोर्स ऑफ वुमेंस को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। यहाँ पे जो जन धन योजना की स्कीम आई थी, जो मोबाइल्स की स्कीम आई थी, जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है, जिसके वजह से चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, चाहे एग्रीकल्चर में ग्रोथ होने की बात हो, इन सब चीज़ों को बहुत बड़ा एक योगदान मिलेगा, जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। हम लोग ने वेरी रिसेंटली देखा है कि जो डेटा और स्टैटिस्टिक्स आए हैं कि इंडिया जीडीपी के माध्यम से फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में हो गया है। ब्रिटेन ने हम लोग को रूल किया 250 साल 300 साल तक, उससे बड़े हम जीडीपी लेवल पे हो गए, और आगे ये एस्पिरेशंस हैं और जो वर्ल्ड के डेटा आ रहे हैं उससे हम फोर्थ हो जाएंगे 2027 में, और थर्ड हो जाएंगे ओवरटेकिंग जापान बाय 2029। नाउ दिस इज़ द एस्पिरेशन। अभी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वी वांट टू सी इंडिया बाय द टाइम वी रीच 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस टू बी अ डेवलप्ड नेशन। नाउ वो यदि विजन है तो हम लोग सबका भी कर्तव्य ये है कि हम लोग उस विजन को साकार करने के लिए, उस विजन को पूरा करने के लिए लगन से काम करें, मेहनत करें, अपना पुरुषार्थ डालें, तभी वो हो पाएगा। अभी जो नया राजपथ जो बना है उसका मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको अब नाम कर दिया गया कर्तव्य पथ। तो हर आदमी को जानकारी होनी चाहिए कि हर आदमी को अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट अलोन दैट हैज़ टू वर्क, इट हैज़ each one of us, whether we are here as promoters of organization, the teachers who are there, they have to do their duties, the students who are there have to have a clear pathway as to what they want to do and how they want to do it. तो वो जब तक अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तब तक नहीं कंट्री बढ़ पाएगा। और दूसरा एक नई और चीज़ जो बहुत अच्छी लगी, जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भैया हम लोग को अपने प्राइड होना चाहिए इंडियन फ्लैग में। बहुत लोग नेशनलिस्ट नहीं होते हैं, और जब तक हम लोग को प्राइड नहीं होगा, हम अपनी हिस्ट्री को नहीं समझेंगे, अपनी सिविलाइजेशन को नहीं समझेंगे, अपने कल्चर और ट्रेडिशन और वैल्यूज़ को नहीं समझेंगे, तो हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, चाहे चाइना हो, या कोई और कंट्री हो, तो वहाँ पे जो सेंस है लोगों का, जो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, वो उनकी हिस्ट्री को बताया जाता है, बिकॉज ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। यदि आप अपनी हिस्ट्री को समझेंगे, अपनी वैल्यूज़ को समझेंगे, ट्रेडिशंस को सीखेंगे, तो आप उन्नति कर पाएंगे, और फिर आप वो मेहनत कर पाएंगे कि मुझे वो चीज़ अचीव करनी है। तो आई वुड अर्ज द डायरेक्टर एंड द फैकल्टी मेंबर कि जितने स्टूडेंट्स हैं उनको इन सब चीज़ों को दिखाया जाए। जैसे प्राइम मिनिस्टर का म्यूज़ियम बनाया है, रेड फोर्ट में जो चेंजेस हुए वो बहुत बढ़िया म्यूज़ियम बना है, कर्तव्य पथ जो है, अलग अलग चीज़ें दिल्ली में हैं या आसपास हैं, वहाँ पे ले जाएं, उनको इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशंस के बारे में बताया जाए, जिससे कि एक सेंस ऑफ प्राइड और बिलोंगिंग कंट्री के लिए हो सके। लैंग्वेजेस की जहाँ तक बात है, इंग्लिश हैज़ बिकम अ कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, बट अपनी मदर टंग को नहीं भूलना चाहिए। जहाँ से जो आदमी आता है, कम्युनिकेशन स्किल जो भी हों उसको शार्पन करना चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है ही, बट आप यदि इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दैट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। बट अपनी लैंग्वेज को भी नहीं भूलना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। इसके अलावा जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि कई मेगा ट्रेंड्स आज के दिन देखने को मिल रहे हैं, और उन मेगा ट्रेंड्स का मैं इसलिए ज़िक्र करना चाहता हूँ क्योंकि आगे का जो फ्यूचर है, नेक्स्ट 25-30 years, दैट विल डिपेंड अपॉन द मेगा ट्रेंड्स, एंड दैट विल ऑल्सो
अल्टीमेटली लीड टू द फ्यूचर ऑफ जॉब्स। जब हम फ्यूचर ऑफ जॉब्स की बात करते हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं फ्यूचर जॉब्स में, किस टाइप के जॉब्स रहेंगे, किस टाइप के जॉब्स नहीं रहेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आगे के मेगा ट्रेंड्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे ख्याल में आता है, अभी तक पिछले 300-400 सालों से जो डेवलपमेंट था या जो डेवलप कंट्रीज़ थी, चाहे वो यूरोप था या अमेरिका था, ग्रेजुअली अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट एशिया में हो रहा है। तो जितनी कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, ऑल दीज कंट्रीज़। और जो मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज़ में ग्रो करेगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। एंड इट विल ओवरटेक द मिडिल क्लास in America and Europe to put together. So this is a big mega trend that is happening, and that's why most of the large companies or multinational companies will be coming to these countries, because consumerism यहीं पे आने वाला है। उनको यदि माल बेचना है तो उनको यहीं आना पड़ेगा, उनको टैलेंट को ढूंढना है तो यहीं आना पड़ेगा, उनको उनको मार्केट्स चाहिए तो इनको यहीं आना पड़ेगा। तो इसीलिए यदि एक ये जो मेगा ट्रेंड है वो बहुत सिग्निफिकेंट रूप में दे रहा है। उसके अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की, आज जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, आप लोग को तो मालूम नहीं होगा, बहुत पुरानी बात है, तो यहाँ पे एवरेज लाइफ लोगों की 33 या 34 इयर्स होती थी। अब आज के दिन 72 इयर्स है, क्योंकि बच्चे पैदा होते थे उसी समय मर जाते थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होती थी। और आज डेवलप कंट्रीज़ में जैसे जापान है या और डेवलप कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड है, स्कैंडिनेविया है, वहाँ पे जो एवरेज लाइफ है लोगों की 85, 90, 95 है। और आप लोग जो आप यहाँ पे उपस्थित हैं यंग स्टूडेंट, आप ये समझ के चलिए आप कम से कम 100 साल जिएंगे ना। उस एज तक आपको यदि जीना है तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होगी, किस टाइप के जॉब्स उस समय चाहिएंगे, केयरिंग फॉर पेशेंट्स, केयरिंग फॉर एल्डरली पीपल, मेडिकल फैसिलिटीज़, इन सब चीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ती जाएंगी। तो एक ये फोकस एरिया है कि एल्डरली केयर के लिए जितनी चीज़ें चाहिएंगी वो ज़रूरी है। सिमिलरली जो बर्थ ऑफ चिल्ड्रन है, पहले हम लोग देखते थे कि पेरेंट्स या हम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो लोगों के 7-8 बच्चे होते थे। आजकल लोग 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं करना चाहते। तो जो एवरेज एज है जो पॉपुलेशन की, जो आज हम लोग बात करते हैं कि हम यंगेस्ट पॉपुलेशन है, 20-25 साल बाद में वो पॉपुलेशन बढ़ के हमारी भी एवरेज एज बढ़ जाएगी, जैसे कि अमेरिका या यूरोप में हुई है। तो हम लोग को जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो मिलेनियम्स हैं, नाउ पीपल हु आर यंगर जनरेशन एंड सम ऑफ यू रिप्रेजेंट द जो 20-25 साल के लोग हैं, आप लोग हैं, आप लोग बड़े एस्पिरेशनल हैं। आप लोगों को चॉइसेस चाहिए, क्वालिटी चाहिए, और कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू वांट, विच इज़ वेरी गुड। You want experience, you want a sharing economy, not necessarily you want to own goods, but you want to conserve also and also to, इस वजह से शेयरिंग कंपनीज बहुत सारी आ गई हैं, चाहे वो हम होटल इंडस्ट्री में देखें, चाहे हम टैक्सी इंडस्ट्री में देखें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखें, बैंकिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री में देखें, जहाँ पे शेयरिंग इकोनॉमी का बोलबाला हो रहा है और जो प्लेटफॉर्म कंपनियां बढ़ती जा रही हैं, तो उस वजह से उनका भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये आप लोगों को सोचना होगा कि क्या क्या मेगा ट्रेंड हैं, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं, एंड मोर सो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देखिए ग्लोबली चैलेंजेस डिफरेंट हैं, अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट हैं। इंडिया में जो चैलेंजेस हैं वो, डिस्पाइट ऑल द ग्रोथ दैट इज़ हैपनिंग, वी आर सीइंग दैट वी आर स्टिल, हमारी जो पर कैपिटल इनकम है बहुत कम है, उनकी बढ़ाने की दरकार है। बहुत लोगों के पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, जो कि अभी जो सरकार ने जो प्रोविज़न दिए थे, जब 40 करोड़ नए लोगों को भी बैंकिंग की सुविधा दी गई थी, अब उनको हर रकम की सुविधाएं दी जा सके, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स हैं, लीकेजेस ऑफ फंड ना हो, इन सब चीज़ों के बारे में। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको
यदि विस्तार में सोचा जाए और उसके लिए समाधान निकाला जाए तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हमारे ख्याल से कोई दूसरी कंट्री में नहीं है। और यहाँ स्केल है, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू फीड 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया एंड देन यू कैन स्केल अप फॉर द ग्लोबल वर्ल्ड एज वेल। तो ये यंग बच्चों लोगों को अपॉर्चुनिटी है कि मिलेनियम्स के क्या चैलेंजेस हैं। और आजकल जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन को ले लीजिए, चाहे आप बैंकिंग को ले लीजिए, चाहे आप न्यूज़पेपर्स को ले लीजिए, या 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 सब में फिज़िकल और डिजिटल मोड में काम होने लग गए। मेडिकल सर्विसेज को ले लीजिए, आज आप फिल्म देखने जाते थे तो पहले आप जाते थे सिनेमा हॉल्स में, आज के दिन आप नेटफ्लिक्स पे देख लेते हैं, घर में बैठ के देख सकते हैं। आपको खाना खाने जाना होता तो रेस्टोरेंट और होटल में जाते थे, आजकल आप घर में खाना मंगा सकते हैं। तो इतनी सुविधाएं और कंफर्ट लोगों की बढ़ गई हैं कि और नए बिजनेस मॉडल उससे क्रिएट हो गए हैं जिससे कि लाखों लोगों को जॉब्स मिलते जा रहे हैं। तो इस टाइप की जो सर्विसेज हैं, बच्चों को ट्रेन होना होगा कि हम फिज़िकल एस्पेक्ट्स में जो कंपनियां चल रही हैं उसके भी ट्रेड्स को समझें, उसके स्किल सेट्स को समझें, और जो डिजिटल स्पेस में चल रही हैं उनके भी जो न्यूएंसेस हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में भी हो। सोशल मीडिया भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती जा रही है, उसके बारे में फ्रॉम डे वन आई वुड लाइक कि हर आदमी, हर बच्चा अपना प्रोफाइल बिल्ड इन करे, फॉलो करे उन लोगों को जिस एरिया में वो जाना चाहता है, सो दैट उनसे भी एक आपको गाइडेंस मिलेगी कि उस सेक्टर में क्या नए चेंजेस हो रहे हैं, क्या डायनेमिक्स उस सेक्टर में है। तो ये सब चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देन कमिंग टू क्लाइमेट चेंज, आई डिड मेंशन अबाउट इट, पर हर आदमी चाहता है कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि लाइफ साइकिल जिसका ज़्यादा हो, कंजम्पशन कम करना पड़े, कम प्रोडक्ट से हम अपना जीवन निकाल सकें, जिससे कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी हो सके और यूटिलाइजेशन भी हो सके। एंड कंज्यूमर भी इसको भी ड्राइव कर रहा है और लार्ज होल सेलर्स भी इसको ड्राइव कर रहे हैं कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि रिसाइक्लेबल हों, जो ऐसे हों जो सस्टेनेबल हों, जो अर्थफिल में ना जाए। कल ही हम लोग की मीटिंग हो रही थी टेक्निकल टेक्सटाइल से, पीयूष गोयल जी से, जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं। तो बोले आप लोग ऐसी क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो सस्टेनेबल हों, जो कि लैंडफिल्स में ना जाएं और जिसका हम लोग उपयोग कर सकें। तो हर रकम से, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले सोलर एनर्जी 18-19 रुपए में पीपीए होते थे पर यूनिट, आज के दिन 2.5 रुपये में सोलर एनर्जी अवेलेबल हो गया। सेमी कंडक्टर्स इंडिया में नहीं बनते थे। आज परसों मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि वेदांता जो बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में और ग्लोबली, नाउ 1.5 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रहा है टू मेक सेमी कंडक्टर्स विद फॉक्सकॉन। आज जो गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम निकाली है फॉर डिफरेंट हाईटेक टेक्नोलॉजी आइटम्स, चाहे वो ड्रोन्स के बारे में हो, चाहे मेडिकल डिवाइसेस के बारे में हो, इवन फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो, इन सब चीज़ों में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में कि हर आदमी इन सब चीज़ों में बहुत तेज़ी से आना चाहता है। एंड आई एम लुकिंग कि इंडिया में बहुत लार्ज अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड जॉब क्रिएशंस। तो उन सब में आप लोग को साझेदार आप लोग बन पाएंगे यदि आप वो स्किल्स और सीख पाएँ जो नए स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और हमेशा अपने आप को तैयार रहिए कि हमको कुछ ना कुछ नया लर्न करना है। एक्सपेरिमेंट करें, आइडिएशन करें, थिंकिंग करें। चैलेंजेस आएंगे, गैप्स रहेंगे, फेल्योर्स होंगे, बट टुडे इन इंडिया और ग्लोबली फेल्योर इज़ नॉट अ डर्टी वर्ड। पहले हम लोग सोचते थे कोई चीज़ में फ़ेल हो जाएगा तो एक स्टिग्मा लग जाएगा कि हम लोग इस चीज़ में फ़ेल हो गए। बट आज के दिन इफ़ यू आर एबल टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर, इफ़ यू आर एबल टू गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम योर फेलियर, तो लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। रिलायंस को बता रहा था, धीरू भाई अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी यदि किसी से मिलते हैं और टॉप लीडर्स को ढूंढते हैं तो वो पूछते हैं कि भैया ये बताओ कि आई मीन द कंपनीज, द पीपल हुम दे मीट आर द पीपल हु आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो उनसे ये तो पूछेंगे ही नहीं कि आपने सबसे आपका अचीवमेंट क्या रहा।
तो ये उनसे पूछते हैं कि भाई आपका सबसे बड़ा फेलियर क्या रहा और उस फेलियर में आपका एटीट्यूड क्या रहा. हाउ डिड यू लुक आफ्टर योर पीपल, how did you look after the ecosystem, how you are able to work along with the whole team to be able to have that sensitivity, because ये ज़रूरी है to take everybody along whenever you are working in an industry. क्योंकि आप इंडिविजुअली आप कितने भी कॉम्पिटेंट होंगे, यदि टीम वर्क नहीं होगा, कोलैबोरेटिव नहीं होंगे, 21st सेंचुरी स्किल्स आप नहीं सीखेंगे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. आज के दिन आइसोलेशन में कोई आदमी काम नहीं कर सकता है. इट इज़ मोर ऑफ टीम वर्क. आज टीचर्स भी हैं, दे माइट बी वेरी गुड इन गिविंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, but students are much more savvy and digitally competent, and there be a two-way learning. Teachers are learning from students and students are learning from teachers. तो ये टू वे जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो अभी एक नॉलेज बिल्डिंग हो पाएगी, को क्रिएशन ऑफ नॉलेज हो पाएगा. एंड आई फील दैट नाउ दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे शुड इंटरैक्ट, दे शुड चैलेंज देमसेल्फ, दे शुड चैलेंज द टीचर्स, एंड इट इज़ को क्रिएशन. इट इज़ नॉट कि आप ये ढूंढ रहे हैं कि टीचर में क्या कमी है या स्टूडेंट में क्या कमी है. आपको ये देखना होगा कि हम लोग दोनों मिल के कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकें, विच विल अल्टीमेटली हेल्प इन द डेवलपमेंट, बिकॉज नोबडी इज़ अ रेपोजिटरी ऑफ नॉलेज टुडे. आप ये सोचें कि हमारे पास ये सब नॉलेज है तो मेरे पास तो है ही नहीं, और जितना मैं सोचता हूँ कि मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ उतना अपने को समझता हूँ कि मुझे तो 5% भी नहीं मालूम है, 100% और आगे, 100 भी सीख जाओ तो लगता है 200% और आगे. तो देयर इज़ नो एंड टू नॉलेज दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड विच वन कैन एक्वायर इन लाइफ. इसके अलावा अभी मैं थोड़ा सा एक इंसिडेंस देना चाहूँगा. मैं एक इज़राइल गया था, और मुझे मालूम नहीं आप कितने लोगों को मालूम है इज़राइल के बारे में. एक बहुत छोटी सी कंट्री है, वहाँ पे 92 लाख आदमी रहते हैं, वो गल्फ़ रीजन में है. आप लोग जानकारी है इज़राइल के बारे में ना? इज़राइल में बहुत छोटी कंट्री है, और उनके जो सबऑर्डिनेट कंट्रीज़ हैं, जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, सिर्फ उनके एनिमी कंट्रीज़ हैं. एंड इज़राइल हम लोग डेलीगेशन ले गए थे, विच आई वॉज हेडिंग फॉर एजुकेशन, और फ़िक्की का डेलीगेशन था. और पर्पस ये था समझने के लिए कि वहाँ पे किस रकम से स्कूल सिस्टम्स चलते हैं, किस रकम से इनोवेशंस हो रहे हैं, किस रकम से नए नए स्टार्टअप कंपनियों उसका लॉन्च हो रहा है. और जो देखने को मिला वहाँ पे कि वहाँ पे जो यंग बच्चे हैं, एक तो उनको मिलिट्री सर्विस है, वहाँ मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है बॉयज़ को, बिकॉज दे आर ऑलवेज एट वॉर. 3 साल की मिलिट्री सर्विस उनके लिए मैंडेटरी है, और गर्ल्स के लिए 2 साल मैंडेटरी है मिलिट्री सर्विस. सिमिलरली कुछ अदर कंट्रीज़ में भी हैं, चाहे वो सिंगापुर हो, कोरिया हो, जो पीपल हु हैव बीन एट वॉर, थोड़ा बहुत जापान में भी है. तो जो वो मिलिट्री सर्विस में बच्चे सीख के आते हैं, उनकी थिंकिंग स्ट्रैटेजिक हो जाती है, उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रहती है कि यदि एक चीज़ में हम फेल कर गए तो दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे. बिकॉज अल्टीमेटली जब आप वॉर में रहते हैं तो आपके पास हर रकम की एक थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए. यदि कोई चीज़ फेल हो जाए तो हम दूसरे चीज़ पे कैसे सक्सीड कर सकते हैं. एंड दे हैव टू इंटरैक्ट इन अ टीम, दे डू नॉट नो ईच अदर, बट जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप करना पड़ता है, और वॉर लाइक एटीट्यूड में रहना पड़ता है, तो वो थिंकिंग अपने को डेवलप करना पड़ेगा. आप लोग ने सुना होगा, क्योंकि जो एक वर्ड है वूका, वो वूका वर्ड जो डेवलप हुआ है, विच इज़ वोलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस, वो वॉर लाइक सिचुएशन से हुआ है. एंड ये वर्ड 1987 में मैनेजमेंट जार्गन में आया है. और इसको क्योंकि आज की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं मैनेजमेंट की, कि आज आप बना रहे हैं गाड़ी, पर गाड़ी बनाने वाला एक आईटी कंपनी भी हो सकता है, गूगल भी गाड़ी बनाने लग गया है. आज आप कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं तो थर्ड जो आदमी उस प्रोडक्ट लाइन का नहीं है, वो तीसरा आदमी बना रहा है. आज गूगल ने कितने चेंजेस कर दिए हैं. आज घड़ी पहनना हो तो आप गूगल की घड़ी पहन रहे हैं, आपको म्यूज़िक सुनना है तो आप गूगल के ऐप से सुन रहे हैं.
So the transformation is happening so rapidly that you do not know कहाँ से कंपटीशन आएगा. तो वूका जो है वो एसेंशियली इसको इस्टेब्लिश करता है कि किस रकम से आप रेडी हो सकें या प्रिपेयर्ड हो सकें टू मीट द चैलेंजेस विच आर अनएक्सपेक्टेड, विच आर अनथिंकेबल. तो वो चीज़ें हैं. जो एक हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं बिल जॉर्ज, उन्होंने वूका को एक्सप्रेस किया था और फर्स्ट टाइम उन्होंने जब उसको अडॉप्ट किया था लीडरशिप के जार्गन में, तो उनका ये विजन था कि वी स्टैंड्स फॉर विजन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी फॉर करेज एंड ए फॉर अडेप्टेबिलिटी. तो आपको एक विजन भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, करेज भी होनी चाहिए और अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज चेंजेस होते रहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंजेस हों, चाहे वो नए टेक्नोलॉजी ड्रिवन चेंजेस हों, चाहे वो सप्लाई चेंज के चेंजेस हों. तो हर रकम के अनसर्टेनिटीज़ बनी रहेंगी जिसके लिए आपको अडेप्ट करना पड़ेगा आपको. तो बिफोर आई कंक्लूड आई वुड ओनली रिक्वेस्ट दैट ईच वन ऑफ यू, आई हैव स्पोकन इनफ, कि आप लोग मेहनत करें, लाइफ को एंजॉय करें, हेल्थ का ध्यान रखें. बिकॉज आई थिंक 4 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. सबसे पहले यदि आपकी अच्छी हेल्थ होगी तब तो आप आगे काम कर पाएंगे और उसमें एक ड्राइव रहेगा काम करने के लिए. सेकंड इज़ फैमिली. बी पार्ट ऑफ, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे एल्डरली हो यंग हो, उनके साथ में मिल के चलें, उनसे शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस को. उसी से आप आगे चल के बढ़ पाएंगे. थर्ड इज़ यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर विद रिगार्ड टू योर गोल्स एंड एम्बिशंस इन लाइफ, और उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करें जो कि आप समझ सकें कि ये हमारे लिए ज़रूरी है. एंड द फोर्थ, क्योंकि आपको इकोसिस्टम में रहना है तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके और लोगों से जो वाइडर सर्कल में हैं उनके साथ में कनेक्शंस आप बनाएं, उनके संग एक ultimately that is a learning experience that you create for yourself. And it is important that you have friends who are able to give you good advice. क्योंकि कई बार डिस्ट्रैक्शंस लोगों के हो जाते हैं, गलत कंपनी में लोग फंस जाते हैं, तो उस वजह से वो उनके जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है. तो आई वुड लाइक आप उनको लुक अपॉन करें, उनसे दोस्ती करें जो आपको कोई अच्छी हैबिट सिखा सके, अच्छी वैल्यू सिखा सके, अच्छे एक्सपीरियंसेस दे सके और जिनसे आप सीख सकें. तो कंटिन्यूस लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, अनलर्निंग करना पड़ेगा, नए एवेन्यूज़ आपके लिए खुलते रहेंगे, नए दरवाजे खुलते रहेंगे. और हर आदमी को अपने आप से ही कम्पीट करना है. आप ये मत सोच के चलिए कि वो आदमी मेरे से इसमें बेटर है तो मैं वहाँ कहाँ पहुँचूँ. हर आदमी में अपने पैशंस होते हैं, हर आदमी में अपने एक तमन्ना होती है कि मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, और एक अलग अलग गोल होते हैं. तो इफ़ यू आर एबल टू इम्प्रूव अपॉन योर सेल्फ इन एनी एरिया वेयर यू फील यू आर नॉट डूइंग वेल, उसको आप स्ट्रेंथन कर सकें और अपने पैशन को फॉलो कीजिए. बिकॉज देयर विल बी प्रेशर बोथ फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रॉम दी फैकल्टी मेंबर्स कि भैया आपको ये स्ट्रीम करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए. पर हर स्ट्रीम में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन है कि यदि आप पैशनेट होंगे तो आप लगन से काम करेंगे, मेहनत कर पाएंगे और उसको आप आगे बढ़ा पाएंगे. मैं तो टेक्सटाइल की वजह से कई जगह जाता था, और जब चाइना जाता था तो एक आध छोटी छोटी स्टोरीज़ आपसे शेयर कर सकता हूँ. तो एक हम फैक्ट्री में गए जहाँ पे मेंस के सूट्स बनते थे, और वो ग्लोबली सब रकम के सूट्स बनाते थे, सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स के बनाते थे. तो वो जो लड़की थी वहाँ पे, जो मैनेजर, जनरल मैनेजर, उससे हमने कहा कि भाई आप 28 साल की लड़की हो, MBA किया हुआ है, तो आप इतने 10,000 वर्कर्स उस फैक्ट्री में काम करते हैं, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? बोले जी मेरे पास तो 2 घंटे से ज़्यादा का काम ही नहीं रहता है. हमने कहा वो कैसे? तो बोले जी यहाँ पे जो कल्चर है चाइना में वर्किंग का, प्रैक्टिसेस हैं या जो कल्चर है, हर आदमी इतना डिसिप्लिन्ड है, उनको ये बता दिया जाता है कि इतने तुमको सूट्स बनाने रोज़ के, और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो. क्वालिटी यदि ख़राब बनेगी तो उसको मेंट करना पड़ेगा,
और यदि नहीं मेंट कर सकते हो तो घर ले जाना, और जितना उसकी कॉस्ट होगी वो तुम्हारे इनकम से डिडक्ट हो जाएगी या तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हर आदमी में एक ये है कि मुझे ज़ीरो डिफेक्ट की तरफ जाना है। तो वो यदि भावना एक आदमी में होगी कि मुझे ज़ीरो डिफेक्ट की तरफ जाना है, तो आपके पास काम ही नहीं है। तो बोले मेरे पास तो 18, यदि मैं 8 घंटे आती हूँ तो 2 घंटे मेरे पास काम रहता है और बाकी 8 घंटे तो मैं सिर्फ सुपरवाइज करती हूँ, और सुपरविजन करने को भी एक्चुअली नहीं है। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ कल्चर विच द फार ईस्ट कंट्रीज हैव बीन एबल टू डेवलप, एंड आई थिंक दे वी हैव टू लर्न सर्टन थिंग्स फ्रॉम देम। एक हम लोग और दूसरी फैक्ट्री में गए चाइना में, जहाँ पे हम लोग 30-35 लोग थे, टेक्सटाइल के लोग थे, और उसमें भी 10-15 हज़ार आदमी स्पिनिंग मिल थी काम कर रहे होंगे। एक आदमी ने सिर उठा के नहीं देखा कि इतना बड़ा इंडियन डेलीगेशन आया है कि वो क्या करने आया है। मैंने दे वर सो फोकस्ड इन वॉट एवर दे वर डूइंग दैट दे डिड नॉट हैव इवन अ मिनट टू थिंक और सी। हमारे यहाँ ट्रेंड होता है कि यदि 4 लोग आ जाते हैं तो लोग अपना काम को भूल के उस तरफ देखने लगते हैं। नाउ दीज आर सर्टन थिंग्स विच वी हैव टू लर्न, बिकॉज हम लोग को अपने को फोकस से नहीं हटना है। और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे। हमारे फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को जानकारी है या नहीं मुझे मालूम नहीं है। वी वर वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिलीज इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल्स, बट एक दौर आया इंडिया में जबकि नेशनलाइजेशन का दौर था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई, लार्ज नंबर ऑफ टेक्सटाइल कंपनीज व नेशनलाइज्ड, एंड 1978 में जो हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वो सब नेशनलाइजेशन हो गया। तो फादर ने कहा, वो तो गीता का पाठ करते थे, और उनका कि भैया ये तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, उन्होंने नेशनलाइज कर लिया, फिर हम इंडस्ट्री खड़ी कर लेंगे। और उन्होंने मेहनत से, लगन से अलग अलग यूनिट खड़ी की, और जहाँ तक पहले उन्होंने यूपी में लगाया, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में, उत्तराखंड में, नोएडा में, और एक 2,000 करोड़ का टेक्सटाइल बिजनेस दोबारा क्रिएट कर लिया। और जब जब डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज दैट ही फेस्ड इन लाइफ, उन्होंने कहा मुझे कंटिन्यूसली CSR एक्टिविटी भी करनी है। तो उस समय CSR ऑफिशियली, अभी तो गवर्नमेंट मैंडेट करती है कि 2% अपना पैसा CSR में बड़ी कंपनियों को लगाना है, पर उस समय हम लोग का जो बिग फैमिलीज़ होती थी उसमें यह था कि मुझे कुछ करना है, तो उनका ये था कि मुझे सोशल गुड यदि करना है और सोसाइटल चीज़ अच्छी करनी है तो मुझे स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि बच्चों को तैयार करना है। तो जहाँ जहाँ उन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली, स्कूल्स भी खोले, और आई एम हैप्पी टू से दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव नाउ 24 स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, प्री स्कूल्स, जिसमें 20 से 25 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, इनोवेशंस करते हैं। अभी मैं जब इज़राइल जा रहा था तो एक बच्चा आया मेरे पास में, वो भी बिज़नेस क्लास में बैठा था मेरे साथ, मेरे पैर छूने लग गया। हमने कहा बेटा तेरे को पहचाना नहीं मैंने। बोला जी आपसे मैं मिला ही नहीं हूँ तो आप पहचानेंगे कैसे। तो हमने कहा क्या, कहाँ जा रहे हो? तो बोला आपके स्कूल में पढ़ा हुआ। हमने कहा कौन से स्कूल में पढ़े हो? बोला कानपुर स्कूल में पढ़ा हुआ। तो हमने कहा कब पास आउट किए थे? क्या थोड़ी चर्चा होने लग गई। हमने कहा क्या कर रहे हो इसराइल में? बोले जी मैंने ड्रोन फैक्ट्री वहाँ एक खरीद ली है। हमने कहा ये तो बड़ी चैलेंजिंग फैक्ट्री है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी कहाँ से लाओगे? बोला जी मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मेरी फैक्ट्री है इंजीनियरिंग की, वहाँ ड्रोन में मैंने समझ लिया ये चीज़ चाहिए। तो ड्रोन तो वहाँ बनाते हैं, इंटेलिजेंट जो हाई स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस के जो कंपोनेंट्स हैं वहाँ बनते हैं। बाकी चीज़ मैंने इंडिजनाइज कर ली, वो इंडिया में बनाने लग गए। तो मैं इंडिया से सप्लाई करता हूँ इसराइल को वो ड्रोन्स, और फैक्ट्री से रिवर्स इंजीनियरिंग के बेसिस में लोअर प्रोडक्ट्स हम लोग सप्लाई ग्लोबली करने लग गए। फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, एंड आप लोग सब एस्पिरेशनल हैं, यंग हैं। वी हैव लॉट ऑफ होप फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आई थिंक यू विल बी एबल टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड टू अ डिफरेंट लेवल। एंड टू कंक्लूड आई विल से कि हम लोग ने जब स्कूलिंग किया था तो हम लोग को 3 चीज़ सिखाई जाती थी कि रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ये 3 आवर्स आप लोग सबको मालूम है। उसमें यदि कॉम्पिटेंसी नहीं होगी तो आदमी आगे नहीं चल पाएगा। पर आज के जागन में जो बिज़नेस मैनेजमेंट का है, या जब आप ज्वाइन करेंगे बिज़नेस में, या तो जो 3 आवर्स हैं वो थोड़े से चेंज हो गए।
और मेरे हिसाब से जो मंत्रा है और जो 3 आर जो रेलेवेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में, वो सबसे पहले तो है कि एक रिलेशनशिप बिल्डिंग, क्योंकि आपको नेटवर्किंग की बहुत दरकार है। चाहे आप कस्टमर के साथ में हो, चाहे सप्लायर के साथ में हो, चाहे बैंकर के साथ में हो, चाहे अपने टीममेट्स के साथ में हो, चाहे सुपीरियर्स के साथ में हो, या तो नेटवर्किंग इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सोशली भी आपको अपने आप को नेटवर्क करना है, यदि अपने को प्रोफेशनली डेवलप करना है, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ समथिंग विच इज़ द फर्स्ट आर आई वुड सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू डू। एंड उसके लिए उनको अपना प्रोफाइल बिल्ड करना, सोशल मीडिया प्रेजेंस करना, लोगों को फॉलो करना, वो एक ज़रूरी है। दूसरा ये है कि रेजिलियंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होते रहेंगे, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड है। और कोविड ने तो हम लोग को सिखाई दिया है कि रेजिलियंस कितना इम्पोर्टेंट है। तो और इंडियंस में अडेप्टेबिलिटी है इस बात की, इसीलिए ग्लोबल कंपनीज़ में इंडियंस को प्रेफरेंस दी जा रही है चीफ एग्जीक्यूटिव्स बनने के लिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम से आते हैं, दे आर एबल टू टेक एवरीबडी टुगेदर। सब में वो कॉम्पिटेंसी और टैलेंट नहीं होता है, बट एज अ जॉइंट फैमिली मेम्बर और द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली दे टेक एवरीबडी टुगेदर। आज आप देखिए, परसों मैंने पढ़ा था स्टारबक्स का जो सीईओ है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और वो सब तो हैं इंडियन, वो भी एक इंडियन को उन्होंने बनाया। तो मोस्ट ऑफ द ग्लोबल कंपनीज आर नाउ हैविंग people from India as chief executive because they know that they have resilience. तो resilience को develop करना, and I'll urge the faculty to talk more about it to the students, how to develop resilience amongst them, because that is another trait which will be important for them to succeed and thrive in life. And the third is that we have to continuously reflect. And the third R which I am talking about, apart from relationship and resilience, is reflection. बिकॉज हर बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम ही बेस्ट हैं, बट हर बार हम लोग को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्या हमारे गोल्स थे, क्या हम उस गोल्स को मीट कर पा रहे हैं, और यदि कोई वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम लोग और कर सकते हैं जिससे कि हम बेटर हो सकते हैं इन सब चीज़ों में। तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपने एक माइलस्टोन्स बनाए अपने लाइफ में कि मुझे ये करना है, 5 साल में ये करना है। आज सपोज़ हम समझते हैं कि हमारी इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, 5 साल बाद ये होना चाहिए, गवर्नमेंट समझती है। आपने भी अपने अपने गोल्स बनाए, हर आदमी अपने तरीके से बनाता है। तो आप वो रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, अपने वीकनेसेस को भी समझेंगे और अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर ड्रॉ कर पाएंगे। तो आई विल अर्ज ईच वन ऑफ यू टू कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट बोथ इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, या गोल्स कि आप अचीव कितना कर पा रहे हैं और आगे चल के आप कैसे बढ़ेंगे। तो विथ दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू एंड, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट ईच वन ऑफ यू हु आर स्टडिंग हियर विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। आप लोग मेहनत कीजिए, लगन कीजिए, ये कंट्री बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, एंड रिक्वायर यंग पीपल लाइक यू टू टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू।